Hello dear students, our today's topic is noun which is called as Sangya in Hindi. Before understanding the definition of noun, let's have a reading of just the definition once. Noun is a name of a person, place, animal or a thing. या हम कह सकते हैं, in the other way round we can say that all the naming words are called noun. Now let's try to understand the meaning of this definition. Noun is a name of a person. It means whenever in English we speak, we write, or we hear the name of a person, a place, any animal, or a thing, then that word is referred to as a noun. In the other way round, we can also get to know its definition from this sentence. All the naming words are called noun. Which means that in English, wherever we study, we read, or we get to hear the name of anything. Naming word means कि कोई भी शब्द जो हमें किसी का नाम बताए, नाम दर्शाए, उसे हम क्या कहेंगे, आर कॉल्ड नाउन. नाउन मीन्स हिंदी में नाउन को कहते हैं संज्ञा. फॉर एग्जाम्पल देखिए रीड दिस वर्ड PRIYA प्रिया. SHIMLA शिमला. जम्मू एंड कश्मीर डॉग कैट ऑक्स पेन बुक बॉक्स एटसेट्रा. एटसेट्रा मतलब आदि. As we have read from the definition that noun is a name of a person, यानी संज्ञा किसी व्यक्ति, पर्सन मतलब व्यक्ति का नाम, किसी प्लेस का नाम यानी किसी जगह का नाम, किसी एनिमल यानी किसी जानवर का नाम, या किसी थिंग का नाम. थिंग यानी कोई चीज, कोई वस्तु. ऐसे नामों को हम क्या कहते हैं इन हिंदी. हिंदी में कहते हैं संज्ञा और इंग्लिश में क्या कहते हैं, नाउन. Because we are understanding, because we are studying in English, so after understanding its definition we will strict to English medium. So we can just revise the definition once. Noun is the name of a person, place, animal or a thing. From the examples it will be more clear to you people. देखिए, we have taken the name of a person, that is Priya. The name of a place, for example Shimla, Jammu and Kashmir. The name of an animal, for example dog, cat, ox. The name of a thing यानी कोई वस्तु, that is like pen, book, box, etc. etc means आदि. So whenever we are asked to find the noun in a given paragraph or in any sort of paragraph or anything, then we can find just by remembering that what is a noun. Firstly we should know that what is a noun. So wherever we find in that given paragraph, wherever we find the name of a person, place, animal or a thing, then we can directly underline it and put it in the category of noun. Hope the definition and the examples are clear to you. Now let's move on to the types of noun, or we can say the kinds of noun, जिसे हम हिंदी में कहेंगे नाउन मतलब संज्ञा. संज्ञा के काइंड्स यानी प्रकार, संज्ञा के प्रकार. तो संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं या कितने भेद होते हैं. We have 5 kinds of noun, यानी कि हमारे पास संज्ञा के 5 भेद होते हैं. The very first kind is proper noun. देखिए जिस तरह से प्रॉपर शब्द से ही हमें पता चल रहा है, प्रॉपर यानी एक पर्टिकुलर चीज. अब वह पर्टिकुलर थिंग कुछ भी हो सकती है. नाउ फर्स्ट लेट्स have a reading of all the kinds, and then we will come to single definition. So there are 5 kinds of noun. The very first is proper noun, number 2 common noun, number 3 collective noun,
Number 4, material noun. Number 5, abstract noun. Let's have a look of the very first type of noun. Number 1, that is proper noun. Let's study its definition. A noun that specifies a particular person, nationalities, events of historical importance, organization, company, specific hotel, etc. First, let us understand this much of the definition. देखिए, प्रॉपर नाउन जिसे हम हिंदी में कहते हैं पुरुषवाचक संज्ञा. इट मीन्स कि प्रॉपर नाउन या पुरुषवाचक संज्ञा वह होती है जब हम एक प्रॉपर चीज़ के बारे में बात करते हैं. जैसे जब हम किसी एक पर्टिकुलर यानी कि एक निर्धारित चीज़ की बात करते हैं. जैसे हो सकता है कि वह किसी पर्सन का नाम हो यानी किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी जगह का नाम हो. डेज यानी दिनों के नाम, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. मंथ्स यानी जनवरी से लेकर दिसंबर तक. लैंग्वेज होती है जैसे हमारे पास हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ये सब क्या हो गए, डिफरेंट लैंग्वेजेस. नेशनैलिटीज़ मीन्स लाइक इंडियन, पाकिस्तानीज एंड ऑल, ये सब इसमें किस में आ जाता है, नेशनैलिटीज़ में आ जाता है. तो जब भी हमारे पास ऐसे वर्ड्स होंगे किसी भी पैराग्राफ में या हमें बोलते टाइम ऐसे वर्ड्स हम सुनेंगे और हमसे पूछा जाएगा कि बताओ ये कौन से टाइप का नाउन है, तो हम कह सकते हैं ये क्या है, यह प्रॉपर नाउन है, क्योंकि वह एक प्रॉपर शब्द को जता रहा है या फिर व्यक्त कर रहा है. प्रॉपर शब्द का मतलब हुआ कि वह चीज़ सिर्फ एक ही हो सकती है, वह उसी चीज़ का कोई और नहीं हो सकता. फॉर एग्ज़ाम्पल, अब सबके अलग अलग नाम होते हैं. हम जो इंसान हैं उन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं, तो वो विभिन्न नाम जो होंगे उन्हें हम प्रॉपर नाउन में रखेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे देखिए प्रिया शब्द है, यह किस में जाएगा, प्रॉपर नाउन में. शिमला, यह भी जाएगा प्रॉपर नाउन में. जम्मू एंड कश्मीर, यह भी जाएगा प्रॉपर नाउन में. क्यों जाएगा, वह इसलिए क्योंकि शिमला नाम की जगह एक ही है, जम्मू एंड कश्मीर नाम की जगह एक ही है, प्रिया जो गर्ल है वह भी एक ही है. तो जो शब्द किसी पर्टिकुलर वस्तु, किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बताएं, किसी पर्टिकुलर इंसान, जगह के बारे में बताएं, उन्हें हम प्रॉपर नाउन कहते हैं. लेट्स रीड द डेफिनेशन वंस अगेन. प्रॉपर नाउन, a noun that specifies a particular person, place, days, months, languages, nationalities, events of historical importance, organization, company, specific hotel, etc. is called proper noun. तो जब हमें किसी पर्टिकुलर जगह का नाम, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम, किसी पर्टिकुलर मान लो अखबार का नाम या किसी भी चीज़ का एक पर्टिकुलर यानी एक विशेष नाम दिया जाए तो उसे हम कहेंगे प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन लिखते समय एक रूल फॉलो करना पड़ता है. जब भी हम प्रॉपर नाउन कोई भी शब्द लिखें जो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आता है, उस शब्द की शुरुआत हमेशा एक कैपिटल अल्फ़ाबेट से होती है. देखिए, इसका रूल है ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल अल्फ़ाबेट. एग्जाम्पल देखिए, ये न्यूज़पेपर का नाम है द ट्रिब्यून. तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि द ट्रिब्यून क्या है, यह किसका नाम है, एक न्यूज़पेपर का नाम है, यानी एक अखबार का नाम है. इस नाम का और कोई अखबार नहीं होता. द ट्रिब्यून नाम की एक ही चीज़ है और वह है अखबार. तो इससे पता चलता है कि जो ये शब्द है द ट्रिब्यून, ये किसके बारे में बात कर रहा है, एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर के बारे में बात कर रहा है. तो यह किस कैटेगरी में आएगा, प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में. अगला एग्जाम्पल देखिए, जापान, JAPAN, जापान, हिंदी में से हम जापान पढ़ते हैं. यह भी एक विशेष जगह का नाम है, तो यह भी आएगा प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में. और इसको लिखते समय हमें हमेशा शुरुआत में कैपिटल अल्फ़ाबेट लगाना है. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इंडिया,
पाकिस्तान। इससे आपको क्लियर हो रहा होगा कि यह जो शब्द हैं, ये सारे वर्ड्स जो हैं, यह एक पर्टिकुलर चीज़, पर्टिकुलर जगह, पर्टिकुलर नाम के बारे में दर्शा रहे हैं. सो सच वर्ड्स fall under the category of proper noun. Let's read the other examples also. देखिए, नेशनल साइंस डे एक विशेष दिन का नाम है. नेशनल साइंस विज्ञान दिवस, तो वह भी साल में एक बार ही आता है, तो वह भी एक विशेष दिन का नाम है. इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस. फिर हमें देखिए व्यक्तियों के नाम हमने एग्जाम्पल्स में लिए हैं, जैसे रितेश, हिमेश, तारा, रीना, आपका खुद का नाम, ये सारे क्या हो जाएंगे? प्रॉपर नाउन. Now let's come to the second type of noun, that is common noun. Common noun की definition पढ़ते हैं. A noun that refers to a general non-specific person, place, animal or a thing. इसे कहते हैं common noun. To have a clear understanding of this definition, let us discuss its meaning in Hindi. A noun that refers to a general non-specific person, अर्थात जो शब्द, संज्ञा शब्द जो एक हमें जनरली एक शब्द के बारे में, एक कैटेगरी के बारे में बताते हैं, वह स्पेसिफिकली एक ही इंसान को पॉइंट आउट नहीं करते. ना ही एक पर्टिकुलर इंसान को, ना ही एक पर्टिकुलर प्लेस को, ना ही एक पर्टिकुलर एनिमल या फिर किसी एक विशेष वस्तु की ओर इशारा ना करके जो संज्ञा शब्द एक जनरल कैटेगरी को दर्शाते हैं, उस शब्द को हम कह सकते हैं कॉमन नाउन. यानी हिंदी में हम इसी कॉमन नाउन को क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा. एग्जाम्पल देखिए, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. देखिए, DOG मीन्स डॉग. अब देखिए, डॉग मीन्स कुत्ता. डॉग्स कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स. अलग अलग कैटेगरीज, अलग अलग ब्रीड्स के डॉग्स होते हैं. तो यहाँ देखिए, अगर खाली एक शब्द लिखा है DOG डॉग, तो यह एक पूरी जाति के बारे में बता रहा है. CAT कैट है, कैट मीन्स बिल्ली. अब बिल्लियाँ भी अनेक प्रकार की होती हैं, परंतु जो ये CAT कैट शब्द है, यह एक विशेष बिल्ली के बारे में बात नहीं कर रहा है, यह एक जाति को दर्शा रहा है. उसी प्रकार वर्ड्स हैं टेबल, स्कूल, TIME टाइम, फ्रेंड, कंप्यूटर, etc. See dear children, all these words do not specify a particular thing. देखिए, अगर यहाँ पर स्कूल लिखा है तो स्कूल के लिए हमने कोई पर्टिकुलर स्कूल का नाम नहीं लिखा है. यह एक जनरल वर्ड है. स्कूल कोई भी हो सकता है. तो जनरली जो एक सारी जाति का बोध कराते हैं, तो उन शब्दों को हम कह सकते हैं कि वह कौन से नाउन है? कॉमन नाउन है. हिंदी में उन्हें कहते हैं जातिवाचक संज्ञा. नंबर 3, वी हैव कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव शब्द का मतलब होता है जब हम एक समूह में बात करते हैं. कलेक्ट यानी इकट्ठा, कलेक्टिव यानी इकट्ठा किया हुआ, नाउन यानी संज्ञा. तो जो शब्द हमें एक समूह के बारे में बताते हैं, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं कलेक्टिव नाउन. इट्स डेफिनेशन इज कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स. यानी जब भी हम ग्रुप में बात करेंगे, ग्रुप की बात करेंगे, इंसानों की, पीपल यानी इंसान, और वस्तुओं की, तो हम उस शब्द को क्या कह देंगे? कलेक्टिव नाउन. देखिए, फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, अ क्राउड ऑफ पीपल. यानी पीपल यानी मनुष्य. जब मनुष्य का एक समूह होता है, यानी अगर हम कभी कहीं किसी मीटिंग में जाते हैं या कहीं जाते हैं, तो एक ग्रुप जाता है ना, तो उस ग्रुप को, समूह को, ठीक है, भीड़ को हम क्या कहते हैं? क्राउड. तो एक इंसान ना होकर क्राउड में तो बहुत सारे लोग होते हैं. जब हम उनकी इकट्ठी बात करते हैं तो फिर वह क्राउड कहलाता है. तो जो क्राउड शब्द है, द वर्ड क्राउड कैन फॉल अंडर कलेक्टिव नाउन. नंबर 2, वी हैव अ बुके ऑफ फ्लावर्स. फ्लावर्स तो आप सबको पता है, फ्लावर्स होते हैं फूल. जब भी हम फ्लावर्स का बुके यानी गुलदस्ता, मतलब एक एक फूल ना लेकर जब हम उसका झुंड लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? हिंदी में हम उसे गुलदस्ता कहते हैं, परंतु इन इंग्लिश वी कॉल इट बुके. सो द वर्ड बुके सिग्निफाइज
group of flowers, not a single flower but a group of flowers. So the words that signify a group of things come under collective noun. So the word bouquet is also an example of collective noun. नेक्स्ट इज नंबर 3, अ गैंग ऑफ थीव्स. थीव्स यानी चोर. चोरों के समूह को क्या कहते हैं? गैंग. नंबर 4, अ फ्लॉक ऑफ शीप. शीप यानी भेड़. भेड़ों के समूह को कहेंगे फ्लॉक. सो ऑल दीज वर्ड्स, वर्ड्स that is crowd, bouquet, gang, flock, all these words which signify a group of people or things can come under collective noun. नंबर 4, वी हैव मटीरियल नाउन. मटीरियल शब्द से ही आपको क्लियर होगा. मटीरियल होता है किसी चीज़ का मटीरियल. आपने अपनी पेट लैंग्वेज में भी सुना है कि मटीरियल इज द थिंग विच इज़ यूज टू मेक समथिंग. सो लेट्स गो टू द डेफिनेशन. मटीरियल नाउन इज अ नाउन that refers to the material of which a particular thing is made up of. अर्थात मटीरियल नाउन हम उस शब्द को कहेंगे जो जिस शब्द से हमें किसी चीज़, जो कोई चीज़ का बोध होता है और जिस चीज़ से वह बनता है. फॉर एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा. एग्जाम्पल है गोल्ड, सिल्वर, कोल, वुड, डायमंड, आयरन एट्सेट्रा. देखिए जैसे हम एक रिंग पहनते हैं, अंगूठी पहनते हैं, तो अंगूठी मान लो गोल्ड की बनी है, तो वह किस मटेरियल की है? गोल्ड की है. अगर आपको एक सेंटेंस आ गया दैट दिस रिंग इज मेड अप ऑफ गोल्ड, तो यहाँ पर जो शब्द गोल्ड है, गोल्ड क्या बता रहा है कि भाई वो अंगूठी किस चीज से बनी है. सो द वर्ड गोल्ड विल फॉल अंडर मटीरियल नाउन. वैसे ही लेट्स टेक सम अदर एग्जाम्पल लाइक डायमंड. डायमंड मीन्स हीरा. तो हीरा भी एक ऐसी चीज है जिससे नई चीज बनाई जाती है. तो कोई एग्जाम्पल ऐसा भी हो सकता है लाइक द रिंग इज मेड अप ऑफ डायमंड. दैट मीन्स जो अंगूठी है वह डायमंड की है. तो जो शब्द डायमंड जो वर्ड है वो कौन सा नाउन हो जाएगा? मटीरियल नाउन. मटीरियल नाउन को हम हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं. नाउ लेट्स स्टडी द नंबर 5 एग्जाम्पल. द फिफ्थ काइंड ऑफ नाउन दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है? हिंदी में हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा. देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स एक ऐसा संज्ञा शब्द जो हमें उस चीज का बोध कराता है जिसे हम टच नहीं कर सकते. चलिए पहले परिभाषा पढ़िए, उसके बाद क्लियर अंडरस्टैंडिंग पाइए. एब्स्ट्रैक्ट नाउन refers to the word that expresses a certain feeling that cannot be touched or seen but which can only be felt. For example, pain, happiness, sorrow, love, hatred, joy, etc. एब्स्ट्रैक्ट नाउन वह नाउन होता है जो ऐसे शब्दों को शामिल करता है. एक बार आप शब्दों को क्लियरली समझिए, आपको इसकी डेफिनेशन समझ आ जाएगी. देखिए पेन, PAIN, पेन. पेन मीन्स दर्द. यदि हमें कहीं दर्द होता है तो क्या हम दर्द को देख सकते हैं? नहीं. क्या हम दर्द को छू सकते हैं? नहीं. तो हम केवल उसे महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं. तो जब भी इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स हमें पढ़ने को आए या लिखने को आए और पूछा जाए क्या यह नाउन है या नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये नाउन है. यस, दिस इज नाउन. एंड व्हाट टाइप ऑफ नाउन इज दिस? दिस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट नाउन रेफर्स टू द वर्ड. एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसे वर्ड को रेफर करता है, ऐसे शब्द को व्यक्त करता है दैट एक्सप्रेसेस अ सर्टेन फीलिंग, यानी जो सिर्फ एक फीलिंग यानी कि एक हम जिसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं. एंड दैट कैन नॉट बी टच्ड. टच्ड मीन्स हाथ नहीं लगा, हाथ लगाना. तो कैन नॉट बी टच्ड मीन्स जिसे हम छू नहीं सकते, उसे हम सीन यानी देख नहीं सकते. बट विच कैन ओनली बी फेल्ट, जिसे हम केवल फील कर सकते हैं. फील यानी महसूस कर सकते हैं. जिस प्रकार पेन है, पेन हमें दिखती नहीं है और हम उसे छू नहीं सकते, हम केवल उसे फील कर सकते हैं. हैप्पीनेस, हैप्पीनेस मीन्स खुशी. क्या हमें खुशी दिखती है?
खुशी किसी व्यक्ति का नाम की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर खुशी होती है हैप्पीनेस, जो हमें जब हम खुश होते हैं। सॉरो मीन्स गम, किसी चीज़ का दुख। तो ये चीज़ें, ये शब्द ऐसे हैं जिनके मीनिंग को हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। तो ऑल दीज वर्ड्स फॉल अंडर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। भाव से आप ज़्यादा अच्छे से समझ जाएंगे कि भाव वह चीज़ होती है जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हुआ? भाववाचक संज्ञा। उसी प्रकार इसके एग्जाम्पल्स में देखिए, लव, लव यानी प्रेम। तो प्रेम भी हम केवल फील करते हैं, छू नहीं सकते और देख नहीं सकते। हेट्रेड यानी नफरत। जॉय मीन्स खुशी। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। हमने नाउन पढ़ा। नाउन में हमने क्या पढ़ा कि नाउन क्या होता है? लेट अस रिवाइज वंस। नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग। यानी कि जो भी शब्द हमें किसी का नाम दर्शाते हैं, वह शब्द नाउन कहलाते हैं। इन इंग्लिश वी कॉल देम नाउन एंड इन हिंदी वी कॉल देम संज्ञा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन आर देयर, कि भाई संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो संज्ञा जो है, जो नाउन है, दैट कैन बी ऑफ 5 टाइप्स। नंबर 1 प्रॉपर नाउन, नंबर 2 कॉमन नाउन, नंबर 3 कलेक्टिव नाउन, नंबर 4 मटेरियल नाउन एंड नंबर 5 इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. What is a proper noun? Proper noun is a noun that signifies a specific place, person, animal or a thing. For example, किसी का पर्टिकुलर नाम, जैसे प्रिया हो गई, शिमला एक जगह का नाम, और जम्मू एंड कश्मीर एक पर्टिकुलर जगह का नाम, द ट्रिब्यून एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर का नाम, और कोई और एग्जांपल भी हम ले सकते हैं। जापान एक देश का नाम, इंडिया एक देश का नाम, पाकिस्तान एक देश का नाम। तो जो एक पर्टिकुलर जगह, व्यक्ति की को का बोध कराए, इन सब चीज़ों को हम किसके अंडर प्लेस करते हैं? प्रॉपर नाउन के अंडर। नंबर 2 पे आता है कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन होता है जो एक जनरल कैटेगरी को दर्शाता है। तो फॉर एग्जांपल होती है, जैसे हमने बात की टाइम, डॉग, फ्रेंड, कंप्यूटर। तो ये सब क्या हो गए? कॉमन नाउन। नंबर 3 पे हमने पढ़ा कलेक्टिव नाउन, यानी कलेक्टिव मीन्स एक समूह के बारे में बात करना, कलेक्टिव बात करना। तो समूह में जैसे हो गया क्राउड, बुके, गैंग, फ्लॉक, ये सारे शब्द किस में आ जाएंगे? इट विल फॉल, ऑल ऑफ दीज विल फॉल अंडर कलेक्टिव नाउन. नंबर 4 वी हैड रेड, वी हैड स्टडीड मटीरियल नाउन। दैट इज, मटीरियल वह होता है जिस का यूज करके कोई नई चीज बनाई जाती है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। इसके एग्जाम्पल्स हमने पढ़े, गोल्ड, सिल्वर, कोल, वुड, डायमंड, आयरन एक्सेट्रा। एंड एट द एंड हमने क्या पढ़ा? नंबर 5 जो उसका टाइप ऑफ नाउन है, 5th टाइप ऑफ नाउन जो है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी हिंदी में जिसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। तो वह कौन से शब्द होते हैं? ऐसे शब्द जो किसी सर्टन फीलिंग को दर्शाते हैं, जिसे हम ना छू सकते, ना हम देख सकते, केवल हम उसे महसूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लव, हेट्रेड, जॉय, सॉरो, हैप्पीनेस, pain. So all this was the part of, all these are the kinds of noun, and that was all for today's topic. So if you like this video, do like it, do subscribe my channel, and comment in the comment box if there is any problem or you want to give any suggestion regarding the video or to clear any sort of doubt. So thank you so much. That was all for today.